हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ मिडनाइट टू माइलस्टोन। मैं हूं आपका होस्ट रक्षित। टुडे वी हैव अ गेस्ट फ्रॉम वन ऑफ द टॉप लॉ यूनिवर्सिटी, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, and she is also successfully working as a corporate lawyer. So let's welcome Kriti. Hi Kriti, welcome to Midnight to Milestone. How are you feeling today? Hi Rakshit, thank you so much for having me. I'm very excited to sit here and have a conversation with you. Great. Thank you for coming here and giving us your valuable time. Before we'll move forward, just give us your short introduction to our viewers so that they can also know कि आज हम किन से बात कर रहे हैं. Sure. Okay, so hi everyone. I am Kriti, as you know my name, Rakshit ने जैसे बताया, and I come from जबलपुर. It's a city in मध्य प्रदेश. मैंने अपना schooling पूरा जबलपुर में ही किया है, like KG nursery whatever you say till my 12th, and Saint Aloysius से किया है. And then I took a drop for 1 year for my preparation of CLAT. Then I went into NLIU Bhopal, which is National Law Institute University Bhopal. वहाँ से मैंने अपने 5 साल का ग्रेजुएशन किया है, विच इज़ BA LLB ऑनर्स. एंड देन उसके बाद आई वेंट टू अ corporate law firm which is trilegal. Then I moved to Cyril Amarchand Mangaldas, which is also a corporate law firm, for working approx I think 4 years, almost 4 years. Then I moved to an in-house as in my role is in-house, but the company is corporate. Now I'm currently working in Avery Dennison. Okay. Thank you so much, Kriti, for giving a brief introduction about yourself. Before we move forward, just wanted to know like how good you're a student during your academics, like 10, 12, how well you scored, whether you are a front bencher or a back bencher or mid bencher. That's a funny question. स्कूल में तो आई वॉज फेयरली अ वेरी डिसेंट स्टूडेंट. तो मुझे बचपन से ही मम्मी ने सिखाया था कि हर फंक्शन में पार्टिसिपेट करना है. तो आई यूज टू बी अ सोलो परफॉर्मर, बी एड सिंगिंग, बी एड डांसिंग. देन इवेंचुअली ऑफकोर्स मतलब ग्रुप्स में भी मैं परफॉर्म करती थी, सोलो भी करती थी. पढ़ाई के मामले में लाइक आई वॉज अ गुड स्टूडेंट. Okay. 10th 12th of course थोड़ा सा fairly decent marks, not amongst the topper, but I think up till my middle school तो अच्छा, काफ़ी अच्छा ही मेरा academic score होता था. So I feel like the introduction also I can conclude like you are currently working as a corporate lawyer. That's right. Yeah. Yes. So and as you mentioned, like you are since childhood you are a solo performer. So is that motivates you to go in lawyer as a corporate lawyer or? गुड क्वेश्चन एक्चुअली. मतलब जस्ट टू क्लैरिफाई कि आई हैव नॉट ऑलवेज परफॉर्म सोलो. ऑफकोर्स ग्रुप परफॉर्मेंसेज भी करी हैं, बट मतलब बचपन से भी आई वॉजेंट अफ्रेड टू पुट फॉरवर्ड माई ओपिनियंस. ऑफकोर्स आई कुड गो रॉन्ग, पर मतलब जनरली ऐसा होता है ना कि इफ़ यू हैव अ डाउट, अगर टीचर कुछ पढ़ा रही है तो आपको डर लग रहा है पूछने में, या आपको किसी से कुछ बहस हो रही है फ्रेंड्स लोगों से, गलत सही क्या सब हो रहा है, तो मैं चप्पड़बाजी तो मतलब मैं कर ही लेती थी इतनी बातें. बट लाइक मी चूजिंग लॉ, वन वे आई फील इज कि ठीक है, ऑफकोर्स आई फेल्ट दैट आई एम गुड एट स्पीकिंग, बट अदर वे ऑल्सो आई हेटेड मैथ. ऑल दो मैंने 12th में मैथ साइंस लिया हुआ था, बिकॉज MP में और जनरली हमारे जो पेरेंट्स हैं, आई कांट से अबाउट अदर स्टेट्स, बट लाइक जनरली आपको ऐसा सिखाया जाता है, और ऐसा हमने भी उस टाइम पे समझा है कि मैथ साइंस लोगे तो आपके गेट्स बहुत सारी चीज़ें खुल जाएंगे. We'll come to that part. Sorry to cut you down here because we'll definitely come to that part where we will try to understand कि आजकल हाँ ये स्टीरियोटाइप है हमारे सोसाइटी में कि बोला जाता है कि आप साइंस लो पहले, सेकंड प्रेफरेंस विल बी कॉमर्स एंड देन आर्ट्स. सो आपने साइंस लिया था, देन स्टिल यू हैव चूज CLAT, clearing CLAT, or you have chosen something in BA LLB. Correct. So before moving forward, one more thing I want to add here, like, so what motivates you like after 12th? As you already mentioned, like you are good at speaking, but क्या motivate किया कि उसके बाद भी कि मैंने साइंस ले लिया है, और सोसाइटी तो डेफिनेटली फोर्स भी किया होगा आपको कि आप. ओके, बिकॉज 12th तक मैं खुद ही श्योर नहीं थी कि मुझे क्या करना है. आई वॉज लाइक कि ठीक है, दिस मेक सेंस वॉट माई पेरेंट्स आर सेइंग कि चलो ठीक है. आई नेवर हेटेड मैथ. मतलब इट वुड नॉट बी अ राइट टर्म. द राइट टर्म वुड बी आई वॉज नॉट गुड एट मैथ. एंड बिकॉज आई वॉज नॉट गुड एट मैथ, तो मुझे लगता था कि अरे यार ये इट्स आई फेल्ट इट लाइक अ बर्डन ऑन माई हेड. पर क्योंकि हमको भी इतने सारे ऑप्शंस पता नहीं होते थे बैक देन, एंड शायद मैंने भी इतना एक्सप्लोर नहीं किया था कि और भी क्या चीज़ें हो सकती हैं. सो आई फेल्ट कि मुझे
ट्वेल्थ में मैथ साइंस लेना चाहिए, एंड बाय द टाइम आई एम इन ट्वेल्थ, बाय द टाइम आई ग्रेजुएट स्कूल, मे बी देन आई विल गेट टू डिसाइड, मैं थोड़ा और समझूंगी कि क्या चल रहा है, क्या करना चाहिए। ट्वेल्थ में मुझे इतना तो क्लियर हो गया कि मैथ साइंस से आप डायरेक्टली किधर जाते हो, 80% ऑफ द लाइक ऑडियंस और क्राउड गोज टुवर्ड्स इंजीनियरिंग। आई फेल्ट कि मतलब मैंने भी थोड़ा प्रिपरेशन किया था, बट समहाउ आई फेल्ट कि शायद मैं इंजीनियरिंग नहीं कर पाऊंगी, आई डोंट सी माई सेल्फ बिकमिंग एन इंजीनियर। देन जो मैं कोचिंग वगैरह जाती थी, आई हर्ड समवन टॉकिंग अबाउट क्लैट, दैट इंट्रीग्ड मी कि क्लैट क्या है। तो मुझे लगा अब एग्जाम जब ट्वेल्थ के बेसिस पे आप देते हो तो वाई नॉट गिव एन एग्जाम। तो मेरा जो फर्स्ट क्लैट का अटेम्प्ट था, मैंने बस रैंडमली किसी फ्रेंड से उसके कोचिंग के नोट्स मांगे, 15 दिन पहले बस मैंने पन्ने पलटाए होंगे और मैं टेस्ट दे के आ गई, एंड आई नेवर चेक्ड माई रिजल्ट, कि मुझे पता था मैंने जब पढ़ा ही नहीं है तो मैं क्या रिजल्ट लेके आऊँगी। बट देन आई रियलाइज कि मे बी दिस इज़ द थिंग आई वॉन्ट टू डू। फिर आई स्पोक टू माई पेरेंट्स कि आई वॉन्ट टू टेक अ ड्रॉप, एंड थैंकफुली माई पेरेंट्स वर वेरी सपोर्टिव। तो मेरी बहन तब भोपाल में काम करती थी, तो मैं फिर भोपाल मूव हुई 1 साल के लिए, और मैं उनके साथ रह के फिर मैं क्लैट की कोचिंग करती थी। आई फील पेरेंट्स प्ले अ वाइटल वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर आपको ऐसा कोई स्ट्रीम लेना है जो कि सोसाइटी में ऑलरेडी बोला जाता है कि डोंट गो फॉर इट, एंड बीइंग अ गर्ल आल्सो, आई एम नॉट सेइंग कि गर्ल्स नहीं कर सकती, बट द वे इन इंडिया स्पेशली लोग देखते हैं, जो स्टीरियोटाइप है उसको तोड़ने के लिए इट्स रियली अ ब्रेव मूव। बट कमिंग टू क्लैट पार्ट, आप हैज यू मेंशन कि आपने 1 साल का ब्रेक लिया, और आफ्टर 15 पेजेस ओनली यू गेट टू नो कि आई एम एबल टू क्लियर। सो एक जस्ट एडवाइस कि आप कि आज स्टूडेंट्स जो चाहते हैं कि वो क्लैट का प्रिपरेशन करें, सो आपके हिसाब से क्या एडवाइस होगा उनके लिए कि they can target this many papers, or they can target any specific book or question or anything like? So just to understand, आपका question is like students who are preparing for CLAT, उनका focus क्या होना चाहिए? तो what I feel is most important कि you have to be like into it. आपको CLAT देना है तो मतलब be sure कि आपको law ही करना है, and it applies to students across all streams. आपको अगर JEE करना है तो your heart and your mind, योर बॉडी एंड सोल हैज़ टू बी देयर विथ यू कि मुझे ये करना है। एंड देन आई फील आपका जो प्रेपरेशन है, तो क्लैट का प्रेपरेशन इज़ वेरी वास्ट। तो मुझे याद है कि जब हम क्लैट की कोचिंग वगैरह जाते थे और हम पढ़ते थे, तो जनरल अवेयरनेस एक जीके का सेक्शन आता था, वो सेक्शन पे हमने यूपीएससी की बुक सॉल्व करी है, बिकॉज जीके इज़ लाइक इट हैज़ नो लिमिट्स। करंट अफेयर्स आपको डे टू डे अपडेटेड रहना है, फिर बाकी मैथ्स का सेक्शन थैंकफुली वो अप टू 10th तक ही आता है, एंड देन फिर लीगल एप्टीट्यूड वगैरह होता था। अभी ऑफकोर्स द पैटर्न ऑफ क्लैट एग्जामिनेशन हैज़ चेंज्ड अ लॉट। जो मैंने 2015 में दिया था, 2016 में दिया था, उसके अगेंस्ट तो बहुत चेंज हो गया है। पर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आपको पढ़ना तो पड़ेगा, मेहनत हर जगह, देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। और आपको कोचिंग्स ज्वाइन करना है नहीं करना है, मतलब दैट्स अप टू यू, बिकॉज अभी देर आर सो मेनी एवेन्यूज। ऑनलाइन आपकी फ्री क्लासेस होती हैं, कोई ना कोई आपको अच्छे यूट्यूबर्स मिल जाएंगे जो आपको पढ़ा रहे हैं, एंड इट्स ऑन योर ओन हार्ड वर्क एज वेल। ओके, सो being an engineer, like I can say, like most of the engineers, for them it's for JEE preparation of JEE, as you already mentioned कि JEE का preparation. So जब कोई JEE का प्रिपरेशन करता है, दे वेंट फॉर लाइक लास्ट 5 years के क्वेश्चन पेपर्स देख लो, या आजकल गवर्नमेंट जॉब्स की भी कोई प्रिपरेशन करता है तो जैसे कि आप पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स देख लो, उसको प्रिपेयर करो, मॉक करो, एंड देन यू विल एबल टू क्रैक। सो एनीथिंग लाइक दैट विद क्लैट, लाइक ऐसे कोई सी आई फील पास्ट पेपर्स तो आपको हर एग्जाम्स के लिए करना है, चाहे आप JEE के लिए करो चाहे आप क्लैट के लिए करो। इज इट समथिंग कि फॉर्मेट चेंज होता है हर बार? और तो फॉर्मेट तो चेंज होगा, तो वो तो आई फील आपको नोटिफिकेशंस आते हैं, बट नॉनदलेस टू गेट इनटू प्रैक्टिस मॉक्स आपको देने ही है, एंड द बेस्ट वे इज कि आप पास्ट ईयर पेपर्स देखो, आपको समझ में आएंगे क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होते आए हैं। अब मैंने अराउंड 7-8 ईयर्स पहले दिया है, तो अभी का जो बच्चा बैठ रहा है उसको क्वेश्चन से स्टिल हेल्प हो सकती है, एटलीस्ट मैथ्स, लीगल एप्टीट्यूड, अभी जो भी सेक्शन चेंज नहीं हुआ है। आई एम वेरी सॉरी, आई एम नॉट अपडेटेड अबाउट द करेंट फॉर्मेट। नो प्रॉब्लम। बट जब आपने दिया था क्लैट, हाउ वाज द कट, मींस कितना कट ऑफ किया था उस वक्त, इफ यू रिमेंबर? बिकॉज़ I don't remember. more than 10 years now. I don't remember, but It's okay. I don't remember. Once you started CLAT, once you cracked, जब आपने CLAT दिया उसके बाद आपने जब CLAT secure किया, and then you landed up in Bhopal and NLU.
as you already mentioned. So how was the experience, like एक्सपीरियंस आप अगर शेयर कर पाओ हमारे व्यूवर्स के साथ कि NLUs में क्या एक्सपीरियंस होता है इन कंपेयर टू टॉप लेवल 3 और टियर 3 और टियर 4 और टियर 2 कॉलेजेस से. So overall 5 years that I've spent in NLU Bhopal has been great, enriching, and I've learned a lot. जैसे ही हम एंटर हुए थे, फर्स्टली इट वाज अ कल्चरल शॉक फॉर मी. ऑफ कोर्स बिकॉज आपके बैच में इतने सारे मेट्रो के बच्चे आते हैं, एंड दैट इज द पॉइंट वेयर आई रियलाइज्ड कि मतलब आई डोंट वांट बैड माउथ एनीबॉडी और या कुछ और चीज़, बट आई फेल्ट दैट जो हमारे स्कूल एजुकेशन हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने जबलपुर में अलोयशियस से पढ़ाई करी है. Aloysius has been one of the creamiest school, one of the top tier schools. But still I felt कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो लैक करी हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारा करिकुलम ऐसा था कि आप पढ़ो और आप लिखो, ठीक है, बट सॉफ्ट स्किल्स आप में डेवलप नहीं किए थे. सो इनिशियली इन माई फर्स्ट फ्यू ईयर्स, आई थिंक फर्स्ट सेकेंड ईयर के आसपास तक, तो आई वॉज काइंड ऑफ शाई, ठीक है, थोड़ा सा मैं इंटिमिडेटेड फील करती थी. ऑफ कोर्स क्योंकि दूसरे स्कूल में जैसे दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर देखोगे, वो स्कूल्स में बच्चों को एक्सपोजर बहुत दिया जाता है. अपार्ट फ्रॉम योर स्टडीज आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत होती हैं. ऑफ कोर्स मैंने भी अपने स्कूल में डिबेटिंग करी है, एलोक्यूशन कॉम्पिटिशन्स हुए हैं, डांस किया है, गाना गाया है, बट व्हाट आई फील स्टिल जो भी हमारे स्कूल में हुआ है दैट हैज़ बिन क्लास अपार्ट फ्रॉम वेयर आई कम. बट आई फील कि वो थोड़ी चीज़ें और फोकस की जानी चाहिए बच्चों के ऊपर on developing the soft skills. So, but otherwise my experience has been great. Coming to your question, कि क्या difference होता है NLUs में and other law colleges which are not NLUs. I feel पढ़ाई तो आपकी एक ही है, जो subjects हम यहाँ पढ़ रहे हैं वही subjects आप वहाँ भी पढ़ रहे हो. In my opinion, in my eyes, there is no difference. The only difference is कि NLUs has a set structure. आपका अलुमनाई बेस स्ट्रॉन्ग होता है. आपके कॉलेज को बेसिकली NLUs इसलिए बने हुए थे टू रीडिफाइन द प्रैक्टिस ऑफ लॉ, एंड ऑल्सो बिकॉज उनके पास एक स्टेटस होता है दैट दीज आर डेवलप्ड बाय स्टेट्स, दीज आर गवर्नमेंट कॉलेजेस, तो इनकी पढ़ाई अच्छी होती है. बट आई डोंट फील दैट्स रियली द केस कि आप NLUs को बेटर बोल सकते हो और बाकी प्राइवेट कॉलेजेस को नहीं बोल सकते ऐसा, बिकॉज और भी बहुत प्राइवेट कॉलेजेस हैं विच आर डूइंग ग्रेट, और वो वहाँ के भी जो स्टूडेंट्स निकलते हैं दे आर ऑल्सो डूइंग ग्रेट. हर जगह की फैकल्टी बहुत अच्छी है. आई फील यू हैव टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट. ऑफ कोर्स आई एम ग्लैड, आई एम ग्रेटफुल दैट आई गॉट इनटू NLU, बट देयर इज नो सच डिफरेंस कि नॉन NLUs अच्छे नहीं होते. Okay, as you mentioned, like your St. Aloysius College, so school, sorry. So even that impacts in your career guideline or career map, like even your academics impact your law career line or not? So basically if I can say, like आपने किस स्कूल से आपने स्कूलिंग की है, how well you scored in your matriculation and intermediate, will that gonna impact in future? Like if the intent to ask this question is like if someone is not landing in NLU and he or she is landing in some level tier 2 or tier 3 colleges, so क्या उन बच्चों के लिए across the academics best होना अच्छा है या still it can manage? नहीं, I don't think so that's the case. See, I'll tell you, I mentioned कि मैं I've been studying और मैंने बचपन से Aloysius में पढ़ाई करी है, but मैंने 12th अपना स्टेट बोर्ड से दिया है. Okay. Because I told you I also wanted to prepare for JEE, although I was not too much into it. पर ऐसा नहीं है, मैंने स्टेट बोर्ड पे भी पढ़ाई करी है, और मैं Aloysius इसलिए बोलती हूँ कि majority of the years I've spent in Aloysius, ठीक है. पर व्हेन आई वेंट टू कॉलेज, टेक्निकली देखा जाए तो 12th मेरा स्टेट बोर्ड का था. आई हैड स्टूडेंट सिटिंग विद मी जो ICSE बोर्ड के थे, आई हैड स्टूडेंट सिटिंग विद मी जो स्टेट बोर्ड्स के थे. आपने बेस्ट नहीं भी परफॉर्म किया है तो हो सकता है आप यहाँ बेस्ट परफॉर्म कर सकते हो. तो मतलब 12th में आई वाज़न्ट अ टॉपर. स्टेट बोर्ड जनरली हमारे टाइम पे इसलिए बोला जाता था कि स्टेट बोर्ड चले जाओ, अटेंडेंस कम लगेगी, JEE की पढ़ाई कर लेना, आपके MP बोर्ड में स्टेट बोर्ड में तो मार्क्स बन जाएंगे. मेरे उतने अच्छे मार्क्स नहीं आए, बट दैट डजंट मीन कि मैंने कॉलेज में अच्छा परफॉर्म नहीं किया. ऑल्दो थ्रू आउट आई वॉज अ डिसेंट परफॉर्मर अकेडमिकली, पर 12th में मे बी आई फील क्योंकि
मुझे थोड़ा वो रहता था कि नहीं थोड़ा टॉप करना है, थोड़ा टॉप पे आना है, रैंकर लिस्ट में आना है, तो वो शायद मेरे पास 12th में नहीं था, मैंने 12th में उतना अच्छा स्कोर नहीं किया, पर फिर बट देन आई मेड श्योर कि मैं कॉलेज में अच्छा परफॉर्म करूँ। ओके तो आई डोंट थिंक कि मतलब स्कूल का बैकग्राउंड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. It depends on your hard work and how much good you're, like how much effort you're willing to put. yeah, actually even I feel like that's the end goal. One should always Exactly. one should always push himself or herself to achieve the Exactly, goals. because not everybody has the same set of opportunities. Yeah, मतलब true. thankful that my parents मुझे Aloysius भेजा, also because Aloysius मेरे घर के एकदम बाजू में होता था. It was just walking distance for me. तो पर हर कोई नहीं जा सकता शायद Aloysius या बाकी स्कूल्स. तो कोई स्टेट बोर्ड के बच्चे भी, मैं भी तो स्टेट बोर्ड की हुई ना 12th में. Yeah. But still, I've been doing good. I feel that I've justified. Okay, so what I can conclude from your conversation, like being it from ICSE, CBSE or a state board, it doesn't matter. Of course. But does grade matters? How well you perform in your academics? Does those grades matter to land a job after For your me, law college? For me, speaking on my behalf, for me, a big yes. Okay, so one more question on that point, like चलो फिर भी ग्रेड्स मैटर करते हैं. डज कॉलेज मैटर्स और बोर्ड मैटर, लाइक CBSE, ICSE और स्टेट बोर्ड, एनी बोर्ड? स्कूल के लिए बोर्ड्स तो a big no. It doesn't matter. कॉलेज में अब अगर आपका क्वेश्चन है कि whether being in an NLU, coming from an NLU matter or non-NLUs. तो जैसे मैंने आपको बोला कि NLUs के पास एक थोड़ा सा लेवरेज है बिकॉज उनका एक कंसोर्शियम है. ओके, तो अंडरस्टैंड इट इन अ वे जैसे आपका IIT है, बट दैट डजंट मीन कि कोई और कॉलेज का बच्चा है तो दे वोंट सक्सीड या वो लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर सकते. तो यू हैव टू बी, मतलब यू हैव टू आउटशाइन योरसेल्फ, मे बी आउट परफॉर्म योरसेल्फ. आप मेहनत करो, मतलब एंड जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ. आपको ऑफ कोर्स यू विल डू गुड. Yeah. So post college, like now, like for students who are currently in not tier 3 or tier 2 colleges, after college, does internship also matters? Internship तो I feel definitely matters, if not for securing job, but for exposure. आपको पता तो चले कि आपकी फील्ड में काम किस टाइप का है, क्या है. सो व्हेन वी वर इन कॉलेज, और हर लॉ स्टूडेंट कैन रिलेट टू दिस, मतलब आप एक वेरिड इंटर्नशिप्स करते हो. मतलब व्हेन यू आर इन इनिशियल ईयर्स ऑफ योर कॉलेज, फर्स्ट सेकेंड ईयर में आप जनरली हाई कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट्स में करते हो टू टेक अ टेस्ट ऑफ कि लिटिगेशन कैसे वर्क करता है. किसी को अपॉर्चुनिटी मिलती है टू वर्क अंडर अ जज ऑल्सो, तो आपको ये समझ में आता है कि जुडिशरी कैसे परफॉर्म करती है. देन सम मूव टुवर्ड्स कॉर्पोरेट लॉ फर्म्स और कॉर्पोरेट कंपनीज ऑल्सो. तो 5 साल एज अ लॉ स्टूडेंट आपके पास बहुत अच्छा टाइम है टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट. एंड जब आप इंटर्नशिप्स करते हो तो आपको समझ में आता है कि आपको किस फील्ड में जाना है, आपको किधर इंटरेस्ट है. तो इंटर्नशिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली फॉर सिक्योरिंग जॉब बट टू नो कि आप किधर जाना चाहते हो और आप क्या कर पाओगे. Okay, so something about law, when I researched a bit, I got to know something called moot courts. Yeah. So when it comes to NLUs, as you already mentioned, you will get the ambience, or you will get a place where all these things will be a little bit more benefit or more great in terms of other law tier 2 or tier 3 colleges. No, moot courts तो सारे कॉलेजेस में होता है, वो एक्सपोजर सारे कॉलेज में मिलता है. एंड इट्स नॉट अ मैंडेटरी थिंग. आई एम नॉट श्योर कि बाकी कॉलेज में मैंडेटरी है कि नहीं. हमारे कॉलेज में मैंडेटरी नहीं था. आई ट्राइड पार्टिसिपेटिंग फॉर मूट कोर्ट बट फॉर सम रीजन वी बैक्ड ऑफ. एंड मतलब इट्स स्ट्रेंज एंड इट्स फनी, पर मैंने पूरे 5 साल में एक भी मूट नहीं किया. So does this actually helps अगर किसी को, जैसे as you already mentioned, like litigation law and one more is corporate law. So moot courts करना beneficial होगा? Of course होगा. और अगर आप नहीं why करो not? तो Why not? Being a lawyer, why not? बहुत सारी और चीजें हैं. मतलब इट कैन लेवरेज यू. मतलब आपको क्यों नहीं करना है, ये आपके ही फील्ड का है तो आपको ऑफ कोर्स ये करना चाहिए. तो आपको भी एक्सपीरियंस होगा ना ये चीज का कि मतलब आप किस डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं, आपका इस चीज में इंटरेस्ट है कि नहीं है. Okay, so post completion of your college, let's get out of college now. Yeah. So post completion of your college, does good grades, so
whether it's good grades or internship or combination of both matters. Or if you are okay in your academics, still it's gonna help you to land up a job. A good answer would be everything matters. आपको लाइक आई सेड इनिशियली कि आपको टेस्ट तो सारी चीज़ों का पता होना चाहिए और आपको ट्राई तो सब कुछ करना चाहिए. एंड इट विल बी अमेजिंग कि आपने एकेडमिकली अच्छा डिसेंट परफॉर्म किया हुआ है, आपने थोड़े मूड्स रिसर्च पेपर्स या ये अदर एस्पेक्ट्स को भी आप इन्वॉल्व हुए हो, और इंटर्नशिप्स भी आपकी अगर अच्छी हैं तो मतलब इट्स जस्ट इट विल बी एन अमेजिंग थिंग. पर अगर नहीं है तो मतलब यू हैव टू फाइंड अ बैलेंस. क्योंकि मैंने मूड कोर्ट्स नहीं किए थे, मैंने 1-2 रिसर्च पेपर किया था, मेरी इंटर्नशिप्स थी, मैंने इंटर्नशिप्स करी हुई थी. ऑलमोस्ट हर ट्रिमेस्टर ब्रेक में, हमारा ट्रिमेस्टर सिस्टम होता था, हर ट्रिमेस्टर ब्रेक में मैंने इंटर्नशिप्स तो करी हुई थी और मैंने कॉर्पोरेट इंटर्नशिप्स भी करी थी. सो मैंने ये सोचा अगर मेरा मूड कोर्ट रिसर्च पेपर रह जा रहा है, अच्छा बहुत अच्छे कॉम्पिटिशन्स में नहीं जीती हूँ, नहीं पार्टिसिपेट कर रही हूँ, तो एटलीस्ट मैं इंटर्नशिप्स और अकेडमिक से बैलेंस करूँ. तो यू हैव टू फाइंड योर बैलेंस एंड इट्स अ राइट थिंग टू डू, आई थिंक. ओके, सो एक शॉर्ट सा छोटा सा डिफरेंस अगर आप बता सके हमारे व्यूअर्स के लिए कि लिटिगेशन एंड कॉर्पोरेट लॉ. सो इज दिस टू ऑप्शंस अवेलेबल फॉर देम? There are many options available. And which So- one is the best? Like what you will suggest, like whether to Where go your on? interest lies. Okay. So, being a first generation lawyer, मेरे घर में और कोई ऐसा लॉयर नहीं रहा है. आई एम द फर्स्ट जनरेशन लॉयर. तो मुझे फर्स्टली लिटिगेशन में इंटरेस्ट नहीं आया. ऑल्सो आई फेल्ट कि मे बी इट वुड बी टू मच हार्ड वर्क फॉर मी. दैट बीइंग अपार्ट, फर्स्ट थिंग बीइंग मुझे इंटरेस्ट नहीं आया. सेकेंड इज जुडिशरी. आप जुडिशरी कर सकते हो, लीगल रिसर्चर्स होते हैं, और यार बेसिकली लॉ हर जगह चाहिए है. तुम स्टार्टअप भी खोलोगे तो आपको एक लॉयर चाहिए है, ठीक है. आप बड़ी कंपनी भी खोलोगे, मतलब अ लीगल एडवाइजर, अ लॉयर इज नीडेड एवरीवेयर. सो इफ यू हैव दैट zeal, आई डोंट थिंक यू विल बी जॉबलेस. Okay. You just have to have that zeal, you just have to have that enthusiasm कि आपको अपने फील्ड में कुछ करना तो है. मुझे कॉर्पोरेट लॉ में इंटरेस्ट आ गया ऑल्सो बिकॉज आई हैव दैट माइंड सेट कि आई वॉन्ट टू हैव दैट मनी फ्लोइंग एवरी मंथ. Okay. So like मुझे वो First कंटिजेंसी में नहीं रहना कि मतलब लिटिगेशन में मुझे क्लाइंट्स ढूंढने पड़े. पर अगर आप लिटिगेशन कर रहे हो, मतलब इफ यू आर अ लॉयर, लिटिगेशन इज द बेस्ट थिंग आउट देयर. आप खुद के मालिक हो, आप अपने मतलब वो बोलते हैं ना, मुंह बोला पैसा मान सकते हो. आपको अपना नाम बनाना है, और वो मेहनत अगर आपने कर ली, नथिंग लाइक इट. so there are career, I can say like there are career options for law student as well. Plenty of. Plenty. But even I saw many movies. Don't judge Jolly me LLB. from there. I saw Jolly LLB, Mamla Legal. There Of are course, a few cinemas which are available. In that I saw like this litigation lawyers, advocates basically. Yeah. So they run behind client. Is it true like जो भी बॉलीवुड में पोर्ट्रे किया जाता है लॉयर्स को कि वो क्लाइंट्स के पीछे भागते हैं या एक बड़े लॉयर के पीछे जाते हैं ज़्यादा? काम तो आपको बड़े लॉयर से सीखना ही है, और क्लाइंट्स तो आपको फेच करना ही है. अगर मैं खुद, इफ यू आर अ कंपनी, मुझे अपना कुछ प्रोडक्ट बेचना है, इफ आई एम नॉट एडवर्टाइजिंग माई सेल्फ, हाउ विल आई गेट द कस्टमर्स? If you are a lawyer, if you will not advertise yourself, how will clients come to you? How tough it is, because in movies I can see like it's the advocates are too many advocates are available, but they hardly get one or two clients. So how difficult it is if you Depends have how any idea. nicely you network. नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है. नेटवर्किंग हर बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है. आप लॉयर हो तो आप खुद का आप एक पर्सनल प्रोजेक्ट हो अपने, आप खुद के एक 1% बिजनेस हो, 1% कंपनी हो, ऐसा समझ के चलो. Yeah. तो आप कितने अच्छे से नेटवर्क कर रहे हो, कितनी अच्छी क्लाइंट बिल्डिंग कर रहे हो, उसी के बेसिस पे आपके पास क्लाइंट्स आएंगे. Great, exactly. Great point. But yeah, so I can conclude in this way: if you are a litigation lawyer, you are running your business. If you are a corporate lawyer, you're getting salary on every month. You're working for some firm or anything. Okay. So one more question. I'm just going little back to understand, like doing internship from good firms matters, or like is there any firms where someone of our viewers can prefer going for internship or anything like which you can highlight? For law students, I think everyone, if not everyone, majority wants to go to the top tier law firms. We have a few in India. तो और
जैसे हमारे कॉलेज में तो उनकी इंटर्नशिप्स ओरिएंट होती थी. They would call for internships and then there used to be a cell PCC placement coordination committee. हमें अपने नाम देने रहते थे. कंपनी अपना कुछ सेट क्राइटेरिया बताएगी द लॉ फर्म कि हमें ऐसे स्टूडेंट्स चाहिए हैं या फिर हमको उनसे व्हाट डू वी से कि हमको उनसे क्वेश्चन सॉल्व कराने हैं, रिसर्च करवाने हैं. तो उनके अपने क्राइटेरिया होते हैं बेसिस दैट यू कैन हैव अ चांस टू intern with them. Okay. Any suggestion for tier 2 or tier 3 colleges? I'm not sure whether you know about it, but in NLUs definitely this internship companies will approach you. But for tier 2 or tier 3 college, what they can prefer or what they can do? See, it's not necessary कि हर NLU के बच्चे को भी ये वाली इंटर्नशिप्स मिल जाती है. आई फील कि वो एक ब्रांड वैल्यू बहुत ही ज़्यादा क्रिएट कर दी है कि सिर्फ NLU वालों को ये टॉप टियर लॉ फर्म्स में इंटर्नशिप ईजिली मिलती है. ऑफ कोर्स देयर इज एन एडेड एडवांटेज कि आप NLU से हो तो मे बी एक थोड़ा सा स्लाइट प्रेफरेंस है. बट जो ये लॉ फर्म के पोर्टल्स एंड ऑल है, मतलब आपके पोर्टल्स है, आप करियर सेक्शन पे जाएंगे, everyone has the opportunity to apply for internships. तो ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से, मतलब they are treating you differently because you are from non-NLU. You just try to apply through the right channel. Maybe just try to reach out to the HR. Okay. So how did you manage to get your first corporate internship? जो मुझे याद आ रहा है कि I think it was CAM, Cyril Amarchand Mangaldas. Okay. I heard it has a scam. No, CAM, Cyril Amarchand Mangaldas. So PCC का हम लोग को email आया था that you have to submit your names, and I think basis rank list, I cannot recall it like exactly, but basis the rank list मेरा selection हुआ था. Okay. CAM के internship में. So currently, how many years of experience you have? Like when you passed out? This July, 1st July, I completed 4 years. 4 years. Okay, 4 years. So Post- working years year of of experience, post. I can say. Okay. So currently you're working in which firm or has a corporate lawyer in which firm? No. If you don't want to disclose, it's totally fine. No. Okay. For around 8 to 9 months, I worked in Trilegal in the employment team. And post that, for 3 years, I worked at CAM, Cyril Amarchand Mangaldas. Or May, I made a move to Avery Dennison. It's an MNC. Yeah. So what is the difference? Like currently you're working in one of the corporate company, as you mentioned, and before that you were in one of the law firms. So कैसा experience है? कुछ difference होगा? जैसे we have product based and client based or service based. It was amazing. It was thrilling. I feel so basically law firms में of course काम बहुत ज़्यादा होता है, but that's the point where you learn a lot. आप वहाँ पे core law practice करते हो. I was working in labor and employment. I was Okay. working on labor and employment laws. तो how the law is interpreted, how we advise the clients, आपको कैसे, मतलब जितना आप डेप्थ में जाके रिसर्च कर सकते हो, जितना आप आर्टिकुलेशन ला सकते हो अपने ड्राफ्ट्स में, is what I've learned in the law firms, and I feel that it has been the most important part of my professional career or working experience. And यहाँ पे आप क्या करते हो, the sole difference is when you're in a law firm and when you're in a corporate company. Law firm में it's like you give set of maybe analysis to the clients. ठीक है, एनालिसिस 1 आप ये कर सकते हो, एनालिसिस 2 आप ये कर सकते हो, 3 आप ये कर सकते हो, इस पे ये रिस्क है, यू टेक अ कॉल. ओके, पर आपने पूरा इन डेप्थ ऑल राउंड पूरा ओवरऑल आपने सब कुछ उन्हें बताया है. नाउ अब आप जब मैं इधर पे आई हूँ इन अ कॉर्पोरेट कंपनी, हियर इज वेयर यू लर्न द बिजनेस. यू आर नॉट जस्ट अ लॉयर, यू आर अ बिजनेस पार्टनर, एंड दैट इज द बेस्ट थिंग आई लव working as a corporate lawyer, because I don't feel that I'm only a lawyer. My role is only of a lawyer. मैं एक बिजनेस पार्टनर भी हूँ. आई हैव टू थिंक इन अ वे कि अगर मैं ये लीगल डिसीजन ले रही हूँ तो क्या रिस्क हो सकता है. Okay. सो दैट्स द इंटरेस्टिंग पार्ट. बट आई कैन नॉट, मतलब लॉ फर्म में ऑफ कोर्स यू हैव टू वर्क लॉन्ग आवर्स एंड यू हैव टू, मतलब आई वोंट, मतलब हाउ डू आई पुट इट कि I can say like law firms is kind of startups
जहाँ पे आपको ज्यादा काम रहेगा हाँ करने मतलब के? अगर आप ऐसे मतलब इफ वी गो इनटू अ डिफरेंट फील्ड ऑल टुगेदर, अगर आपको स्टार्टअप्स में बहुत काम करना पड़ता है क्योंकि आपको सीखना पड़ता है, Yes. तो वही आपको लॉ फर्म में करना पड़ता है। आई एम वेरी थैंकफुल बिकॉज जो ये 4 साल में मुझे एक्सपीरियंस आया है, कॉन्फिडेंस आया है इन माई वर्क, द वे आई स्पीक, द वे आई लाइक ड्राफ्ट माई सेंटेंसेस और वट एवर लाइक आई एम प्रोफेशनली, इज बिकॉज ऑफ द लॉ फर्म जो मैंने वहां पे काम किया। ऑफकोर्स देयर हैव बीन नाइट्स जहाँ पे रात रात भर काम करना पड़ता था, मैं रोती थी, बट nothing is You earned enjoy, very yeah. easily. Yeah, true. So, okay, as you mentioned, earn very easily. क्या सच में लॉयर्स पैसे कमा पा रहे हैं? जो इफ आई गो बैक टू बॉलीवुड मूवीज, जिस तरह से वो भागते हैं क्लाइंट्स के पीछे, आई एम टॉकिंग अबाउट एडवोकेट्स और लिटिगेशन लॉयर्स। पर ऐसा नहीं है, मतलब देयर वुड बी अ वेरी स्मॉल पोर्शन जो शायद से नहीं क्लाइंट फेच कर पा रहे हैं, बट अ लॉट ऑफ देम आर डूइंग गुड। Okay. So, how did you bag your first placement? Like how you managed to get your first placement? Is the college plays a key role to get the first placement? Because I think every college plays a key role because आपके day zero होते हैं, the day when all of your company comes for placement. तो unfortunately I was the COVID batch, तो हमारा on campus नहीं हो पाया था, it was a virtual interview that we gave. तो the company was Trilegal, sorry not the company, it was a law firm, Trilegal. हम लोगों का shortlisting हुआ, फिर जीडी हुआ, जीडी क्लियर करके इंटरव्यू हुआ, एंड आई थिंक 1 या 2 दिन बाद, या आई थिंक ऑन द सेम डे, आई एम नॉट वेरी क्लियर अबाउट दैट, देन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम द पीसीसी दैट आई हैव बीन सिलेक्टेड। Oh, great. So just wanted to know, like, how was your journey, like, the first company, or how was your placement journey, I can say? It was a result of consistency. As I mentioned earlier कि I ensured that I maintain a decent grade. मैंने academics को बहुत फोकस किया था, एंड आई फील मतलब academics and decent internships of course, I felt कि एक छोटा सा, not a lot, but मेरे को एक छोटा सा leverage तो शायद मिला क्योंकि मैंने मेहनत करके एक decent rank लेके आई, तो उस basis पे I feel कि मेरी shortlisting हो जाती थी considering for the top tier law firms. Okay. And then of course working on yourself, basically believing yourself, अपने आप पे और अपने आप को build करना, working on your soft skills. So I feel that has been a part of it. Okay. Any suggestion for our viewers, like if they are from top tier 2, tier 3 colleges, how to get in one of the top law firm for a job? For students across all Colleges. law colleges, I think that you have, as I mentioned, आपको एक balance find करना पड़ेगा. Internships, colleges, moods, research paper, just find a good balance. But this is something that I have been suggesting to everybody. Please do not compromise on your academics. That plays a major role. Maybe ये गलत भी हो सकता है. It worked out for me. I've seen it working out for a lot of people. तो it should work out for you also. मतलब of course, please आप सारी चीज़ों में participate करिए, but just do not sacrifice your academics. कि अगर मूड का सबमिशन है तो फिर हम एक सब्जेक्ट को जाने देंगे, उसका रिपीट दे देंगे, या किसी किसी कॉलेजेस में ऐसा हो सकता है कि आपका मूड का वेटेज शायद से आपके दूसरे एक सब्जेक्ट में आ जाए, मे बी आपका रिसर्च पेपर से किसी वे में एडजस्ट हो जाए. इफ दैट इज द केस, जस्ट सी हाउ इट वर्क्स, दैट शुड बी फाइन, बट डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर अकेडमिक्स. मतलब दैट गिव्स यू एन एडेड लेवरेज. दैट हैज वर्कड आउट फॉर मी and I can only come from my experience. Of course दूसरे लोगों का अलग हो सकता है. I've seen people who are exceptionally good in researching, exceptionally good in mooting, बहुत अच्छे डिबेटर्स थे वो, एंड ऑफ कोर्स उनकी भी जॉब्स लगी है लॉ फर्म्स में, बट व्हाट हैड वर्कड आउट फॉर मी, मैं बस वही बताना चाहती हूँ. सो डू नॉट सैक्रिफाइस ऑन एकेडमिक्स. Okay. How to stay relevant in this profession, and where do you see in next 5 to 10 years yourself? Okay, that's an interesting question. So to stay relevant in your field, like in law, stay updated. You have to stay updated. You have to be on top of things. अगर आप एक लिटिगेशन लॉयर हो तो ऑफ कोर्स, बिकॉज लिटिगेशन एक ऐसा एस्पेक्ट है कि आपको यू हैव टू टेक एवरी एंड ऑल काइंड ऑफ केसेस, राइट. इट कुड बी रिलेटिंग टू क्रिमिनल, इट कुड बी रिलेटिंग टू सिविल, और उनके अंदर फिर और एस्पेक्ट्स आ जाते हैं.
तो आपको ये देखना है कि उस एरिया में, आपके एरिया में कितने क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं. लाइक बैक व्हेन आई वाज इन लॉ फर्म, आई वाज वर्किंग अंडर ऑन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट लॉज. तो हम लोगों के अंदर एक हैबिट थी कि मतलब अगर रिसेंट कुछ केसेस हो रहे हैं, लेजिस्लेटिव अपडेट्स हो रहे हैं, तो वी हैव टू स्टे ऑन टॉप ऑफ इट. तो वी यूज्ड टू हैव लाइक वीकली अपडेट कॉल्स. तो रोटेशन वाइज कोई ना कोई जूनियर्स कवर करते थे. व्हाट आर द जुडिशियल अपडेट्स, व्हाट आर द लेजिस्लेटिव अपडेट्स, कुछ और डेवलपमेंट्स हो रहे हैं क्या, आर देयर एनी ऑर्डर्स, बाय लॉज, नोटिफिकेशंस बाय द गवर्नमेंट. बिकॉज अगर आप रिसेंट चीज़ों पे अपडेटेड नहीं हो, हाउ आर यू गोइंग टू सर्व योर क्लाइंट, how are you going to serve your company, or how are you going to serve your customer? Yeah. It's just like, what I feel is, it's just like being in a medical field. अगर कुछ एक new pharmaceutical drug develop हुआ है and that can help your client, that can help the patient, पर आपको वो पता ही नहीं है, तो that's a lag on your part. Yeah. आप कैसे help करोगे? तो आपको अपनी फील्ड में अपडेटेड रहना है. maybe find portals, मतलब ऐसे कुछ वेबसाइट्स वगैरह हो जिसमें रेगुलर अपडेट्स आते हैं, टेक द सब्सक्रिप्शंस, तो आप वैसे रेलेवेंट रह सकते हैं. कमिंग टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डू आई सी माई सेल्फ इन नेक्स्ट 5 years. मैं नेक्स्ट 5 years के लिए अपने आप को एक डेजिग्नेशन से अटैच नहीं करना चाहती कि आई बिकम अ सीनियर लीगल काउंसिल और आई वुड हैव बिकम अ पार्टनर और वट एवर डेजिग्नेशन यू कैन थिंक ऑफ. बेसिकली what I want is कि on whatever laws I'm working or I'm practicing, मुझे उसकी नॉलेज अच्छे से हो, मैं उसमें कॉन्फिडेंट रहूँ. बिकॉज what if somebody is approaching to me कि आपने तो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट लॉस पे काम किया हुआ है, क्या आप इस चीज़ में मेरी हेल्प कर सकते हैं, तो मैं उसमें ब्लैंक ना हो जाऊँ. Of course I will need some time to get back to them, पर I want to be confident enough कि मतलब I've learned. Yeah. So yeah, I feel like even that matters. Stay updated. हाँ, बिकॉज मैं अगर सीनियर लीगल काउंसिल बन गई पर मैंने किसी लॉ का सही इंटरप्रिटेशन नहीं करके या सही एप्लीकेशन नहीं करके अपनी कंपनी की हेल्प नहीं करी, मैं जिधर पे हूँ मैंने उनकी हेल्प नहीं करी या क्लाइंट की या कस्टमर की हेल्प नहीं करी, तो मुझे वो डेजिग्नेशन का भी इट विल बी ऑफ नो यूज टू मी. So as we already talked about this evolution, AI का भी कोई की रोल है? Like everywhere we are seeing nowadays AI is playing a key role, like ChatGPT और बहुत सारे ऐसे AI tools आ चुके हैं. So in future क्या legal tech नाम की भी कोई चीज़ आने वाली है? Of course there have been few tools that I've come across, but in my opinion, what I feel, because I'm not very tech savvy person, what I feel, AI cannot replace a human mind. I can take the help. मैं अगर कुछ ड्राफ्ट कर रही हूँ, मैं मे बी उसको और परफेक्ट करने के लिए आई कैन टेक हेल्प. मे बी इट कुड बी सिली ग्रामेटिकल एरर्स या जस्ट टू ब्रेनस्टॉर्म अ क्वेरी दैट मे हैव कम टू मी, बट आई फील कंप्लीटली रिप्लेस कर पाना एक लॉयर को इज नॉट पॉसिबल. ऑफकोर्स डॉक्यूमेंटेशन में वी कैन टेक हेल्प, पर AI के भी अपने सेटबैक्स हैं. आप ब्लाइंडली उस पर रिलाई नहीं कर सकते. I think sometime back once I tried using AI और मैंने कुछ एक चीज़ चेक करने के लिए बोला था, but AI couldn't help me. और उसने मुझे कुछ एक आउटपुट भी जो दिया था, तो 3 times I had to correct AI कि no, I meant this. Okay. So जितना टाइम मैं उधर लगा रही हूँ उतना टाइम मैं अपने खुद से ढंग से लगा लूँ, अपनी रिसर्च करके अपना दिमाग लगा के, तो that will be better. Just take it as an addition. It's kind of support. Something that he Yeah. can also kind Yes. of a helper for us. Yes. Yeah. Fine, great. So wrap up करने से पहले just wanted to know just a funny part of it, like आपके relatives, friends वो आपसे डरते हैं, like या not डरते हैं, either they can give example like ये मेरी friend lawyer है. हाँ, that they do. क्योंकि थोड़ा सा आई फील उनको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी थोड़ा आता है कि मतलब कुछ भी हुआ तो हाँ भाई ये देख लेगी. फ्रेंड्स का भी रहता है कि हाँ कुछ भी हुआ तो देख लेगी ना. मैंने कहा अरे मैं कॉर्पोरेट लॉयर हूँ, मैं तुम्हें क्राइम से आके नहीं बचा सकती, और ऑफ कोर्स किसी को नहीं बचाना चाहिए. गाइस डोंट कमिट एनी क्राइम प्लीज. So what you do in your free time, like apart from reading books or apart from working for your company? I like to travel, and what I really enjoy is trying new art forms. मतलब मुझे ऐसे आर्ट एंड क्राफ्ट DIY वगैरह सब बहुत पसंद है, तो मैं कुछ ना कुछ न्यू आर्ट फॉर्म्स ऐसा सीखती रहती हूँ, करती रहती हूँ. Great.
So now, as we are about to conclude this episode, thank you so much for coming here and giving your valuable advice to us and our viewers. So how you, at the end, just wanted to know like how you enjoyed it, how are you feeling after this podcast? Thank you so much for having me, Rakshit. It was great speaking to you, and I hope कि मैंने जो अपने छोटे छोटे एक्सपीरियंस शेयर किए हैं वो आपके व्यूवर्स को और सबको किसी ना किसी वे में हेल्प करें. So all the best everyone, all the best to you, and thank you so much again. Yeah, thank you.